بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں او این این کے اس اسپیشل لائیو ٹرانسمیشن میں. ناظرین، آج ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے کہ اس کے بعد ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ سے نظر گفتگو کی جائے اور ساری صورتحال پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے. آج مرکزی حکومت نے فیڈرل منسٹر فار فائنانس اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کی اپروول سے پیٹرول کی پرائسز میں 20 روپے پر لیٹر اور اسی طرح تقریباً ڈیزل کی قیمت میں بھی 20 روپے پر لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے. عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے. توقع یہ کی جا رہی تھی کہ رات کو شاید قیمتیں حکومت برقرار رکھے، کیونکہ 12 اگست کو اسمبلیوں کی مدت پوری ہو رہی ہے. تو اس سے پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ حکومت جو ہے یہ قیمتیں برقرار رکھے گی اور اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوگا. لیکن آج دن کو اچانک اس میں اتنا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھنے والے سننے والے سارے حیران رہ گئے. پوری قوم ششتر رہ گئی ہے کہ 20 روپے لیٹر اضافے کی ضرورت کیا تھی، کیوں کی گئی. اور ہم بھی حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ حکومت نے کیا کیا. ایک ایسی حکومت جو جا رہی ہے جس کا ٹینیور ٹوٹل 8 یا 10 دن رہتا ہے، اور اس نے جاتے جاتے اتنا بڑا ایک ایٹم بم سمجھ لیں آپ گرا دیا عوام پر، غریب مسکین لوگوں پر. تو یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس سے تو بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ شاید حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے حکومت کو. اگر حکومت کو پرواہ ہوتی تو پھر اس طرح کا ظالمانہ فیصلہ نہ کیا جاتا. ایک ایسی حکومت جو جانے والی ہے، اور جانے والی حکومت اپنے چند دنوں کے اندر اندر اپنے مطلب اختتامیہ انٹرنیٹ کی کچھ سگنلز کی وجہ سے شاید رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. لیکن یہ چیز سمجھ سے بالا تر ہے کہ حکومت نے کیوں اضافہ کیا اور کس کے کہنے پر کیا. یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی جمہوری حکومت اتنا بڑا اضافہ کر دے، اور وہ بھی جاتے جاتے اضافہ کر دے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے، اور اس وقت اکانومی بالکل ڈسٹرب ہے. اکانومی جو ہے انتہائی پریشانی کے مطلب انتہائی جو ہے نا ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب سے واپس آیا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان پر مشکل پڑی، جب بھی پاکستان میں کوئی مصیبت آئی، جب بھی ہماری اکانومی ڈی سٹیبل ہوئی، تو ہمیشہ غریبوں سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے جی کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ قربانی دیں. غریب کب تک قربانی دیتے رہیں گے؟ 1947 سے لے کر 2023 تک غریب ہی قربانی دیں گے. امیروں نے کوئی قربانی نہیں دینی، امیروں نے ٹیکس نہیں دینا، صرف غریبوں نے ہی ٹیکس دینا ہے. غریبوں سے ہی پہ جو ہے آپ پیٹرولیم لیوی بڑھائیں گے، غریبوں سے ہی 100 روپے لیٹر پیٹرول جو ہے وہ اس پر ٹیکس لیا جائے گا، غریبوں سے ہی آپ سارا کچھ لیں گے. اس ملک کو جنہوں نے لوٹا، جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا، جن کے سوئس اکاؤنٹس ہیں، جن کے لندن میں سرے محل اور انگلینڈ میں سرے محل ہیں، جن کے لندن میں بڑے بڑے فلیٹس ہیں، کیا وہ قربانی نہیں دیں گے؟ صرف غریب ہی قربانی دیتے رہیں گے؟ آج تو پوری قوم کی چیخیں نکل گئی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ قوم کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. آج پہلے لوگ مہنگائی سے پریشان تھے، ڈسٹرب تھے. جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس وقت ان کا نعرہ تھا، ان کا ایک مشن تھا، آٹا آج جو ہے وہ 3000 روپے تھیلا بھی نہیں مل رہا. چینی جو ہے وہ 150 روپے 160 روپے کے لیے ایبٹباد کے مختلف علاقوں میں وہ فروخت ہو رہی ہے. ڈالڈا جو ہے 5 کلو وہ 3000 سے اوپر کا مل رہا ہے. کیونکہ انہوں نے عوام کو دیا ہے تو کیا دیا ہے، کیا ریلیف دیا ہے؟ اس میں قربانی صرف غریب عوام سے ہی لی جائے گی. انتہائی بہت بڑا ظلم کیا ہے شہباز شریف صاحب نے، ان کی کیبنٹ نے، ان کے فائنانس منسٹر نے. اگر وہ سب سے پہلے خود قربانی دیں، میاں شہباز شریف صاحب خود قربانی دیں، ان کے وزراء قربانی دیں، ارکان پارلیمنٹ قربانی دیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، جے یو آئی کے لوگ قربانی دیں، تو پھر تو غریب عوام قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن صرف غریب عوام سے ہی آپ قربانی مانگ رہے ہیں. 52 روپے آپ نے، 50 روپے سے زائد آپ نے بجلی کی قیمت کر دی. پیٹرول جو ہے وہ 275-76 روپے کر دیا. ڈیزل کی بھی اتنی قیمت ہو گئی ہے. خدا رہا اتنے ظلم نہ کریں اس غریب عوام پر. اور پاکستانی عوام جو ہے
जुल्म सहते सहते अब तो लग रहा है कि ये थक चुके हैं। इतने जुल्म, इतनी ज्यादतियां, इतनी महंगाई, इतने मामलात शायद किसी भी मुल्क पर, किसी भी कौम पर शायद इतने नहीं हुए जितने पाकिस्तान के अवाम पर हुकूमतों ने किए हैं। मुसलसल जो भी हुकूमत आती है वो सुहाने सपने दिखाती है, सबज बाग दिखाती है, और लोगों को कहते हैं जी कि हमने ये करना है, हमने वो करना है, हम इस तरह कर देंगे, हम उस तरह कर देंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे होता ये है कि कुर्बानी सिर्फ गरीब से ली जाती है। एक आने वाली हुकूमत दूसरी हुकूमत को मोर्दे इल्जाम ठहराती है जी कि पिछलों ने कुछ नहीं किया, हम तो इकानमी को बेहतर करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। 1988 से हमने तकरीबन सियासी मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू की। उसके बाद 88 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई तो उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो साहब को मोर्द इल्जाम ठहराया। 90 में जब मियाँ साहब आए तो मियाँ साहब ने बेनजीर को, फिर बेनजीर आई, फिर भुट्टो साहिबा आई, अजीम लीडर थी, बड़ी लीडर थी, लेकिन उन्होंने फिर मियाँ साहब को मोर्द इल्जाम ठहराया। मियाँ साहब जब दोबारा आए 2 तिहाई अक्सरियत से तो उन्होंने सिस्टम ही जो है वो बिगाड़ दिया। परवेज मुशर्रफ साहब आ गए। परवेज मुशर्रफ के दौर में इकानमी बेहतर थी। शौकत अजीज के दौर में मुल्क ने बड़ा बिलखुसूस मोबाइल जो ऑटोमोबाइल मोबाइल की जो इंडस्ट्री थी उसने, आईटी की सेक्टर ने बड़ी तरक्की की। लेकिन फिर उनके जाने के बाद जो हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा जी कि परवेज मुशर्रफ ने तो किया ही कुछ नहीं, खजाना खाली छोड़ गए। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो मियाँ साहब ने कहा कि खजाना खाली है। खान साहब आए, उन्होंने कहा जी मियाँ साहब लूट कर चले गए। और जब अब दोबारा मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, पहली बार नून लीग की हुकूमत दोबारा आई है पीडीएम की, तो फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने सारा कुछ, पीटीआई की हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया था और मुल्क को, इकानमी को ऑक्सीजन पर वो छोड़ गए थे। इस सारी सूरत हाल में मुद्दा यही बयान करना है कि कब तक गरीब आवाम को इस तरह की बातें सुनना पड़ेंगी, कब तक इस मुल्क के मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं होंगे, कब तक हमारे लोग जो हैं वो, हमारे सियासतदान जो हैं वो गरीबों को इस तरह बहकावे में लाते रहेंगे। गरीब फ्रॉम द डे फर्स्ट टू टिल 2023 आज तक कुर्बानियां दे रहे हैं। गरीबों ने तो अपना सब कुछ लुटा दिया इस मुल्क के लिए, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिनके खजाने, जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर हैं, जिनकी दौलतें बाहर हैं, जिनके पैसे बाहर हैं, जिनकी जमा पूंजी बाहर है, जिनके बच्चे बाहर हैं, जिनका सब कुछ बाहर है, आज भी वो पाकिस्तान में अय्याशियां कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। अब भी अगर पाकिस्तान के अवाम ने अगर अक्ल और दानिश का मुजाहरा न किया तो ये सिलसिला मजीद जो है वो फैलता रहेगा। हुकूमत को चाहिए कि फिल्फ और होश के नाखन ले, इतनी बड़ी कीमत में इजाफा जो है वो वापस लिया जाए। इंटरनेशनल मार्केट में, आलमी मार्केट में पेट्रोल, क्रूड ऑयल जो है, खाम तेल जिसे कहते हैं, उसकी कीमतें कम हो रही हैं। कहीं भी खाम तेल की कीमतें बड़ी नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमने डॉलर को उस सतह पर पहुंचा दिया है कि डॉलर से हम इस चीज को रिलेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जहाँ 20-40 साल खाना जंगी रही, लड़ाई होती रही, अमेरिकन ने वहां पर जो है वो किया, हमला किया, फिर उससे पहले सोवियत यूनियन की फौज वहां पर रही। इस सारी सूरत हाल पर जो है उसके बावजूद आज तालिबान ने उस मुल्क को, उसकी इकॉनमी को मामला ये है कि मतलब बिल्कुल हमारे हालात जो हैं वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। इस कौम, पूरी कौम परेशानी का शिकार है। और खुर्शीद खान साहब भी वो कर रहे हैं, 1947 की बात कर रहे हैं। सर जी, जितने भी लोग हैं, सरदार अमजद साहब हैं, सारे लोग जो हैं जो हमारे साथ हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, हम यही कहते हैं कि इकानमी अगर खराब है तो आप खुद से कुर्बानी का आगाज करें ना। आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप अपने खानदान के बड़े बड़े एसेट्स हैं, आप बड़े मालदार लोग हैं। आप इस मुल्क के लिए, आप कम से कम ये बताएं कि चीनी आपने क्यों महंगी कर दी? यकदम चीनी 70 रुपए 80 रुपए से आपने उठा के 150-160 रुपए कर दी, इसकी वजह क्या है? हम तो खुद हैरान है, परेशान है। पिशावर के साफी कहते हैं जी कि तुरखम बॉर्डर से सारे जो जिम्मेदारान हैं और इस वक्त इस सूबे की जो की पोस्ट पर जो शख्स बैठा हुआ है, उसके जो करता धरता लोग हैं, वो तुरखम बॉर्डर से चीनी को अफगानिस्तान भेज रहे हैं। इसी तरह ये सारी सूरत हाल दीगर जगहों पर भी है। चीनी आपने महंगी कर दी, आटा आपने महंगा कर दिया, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, डीजल आपने महंगा कर दिया, दालें आपने महंगी कर दी, चावल आपने महंगे कर दिए,
मेडिसन, सबसे बड़ा जुल्म यह है कि मेडिसन आपने महंगी कर दी और बिजली 50 रुपए, दुनिया के किस मुल्क में 50 रुपए यूनिट बिजली है? मेरा तो नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क में 50 रुपए यूनिट बिजली होगी। और ये सारी चीजें जो हैं, हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान के साथ कि हमारे मुल्क में इस तरह हो रहा है, और अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट जैसे ही आई है तो उन्होंने उस इकानमी को स्टेबल किया। वहां पर शरई कानून के मुताबिक, शरई जो लॉ है, इस्लामिक लॉज के मुताबिक उन्होंने सिस्टम को जबरदस्त तरीके से स्मूथ किया। और आज वहां पर सूरत हाल ये है कि आज हमारे यहाँ डॉलर की क्या कीमत है, वहां पर डॉलर की क्या कीमत है। हमारे यहाँ डॉलर 3 गुना महंगा है उनकी निस्बत, और वहां पर चीनी, वहां पर जो मामलात हैं, दालें और दीगर चीजें जो हैं वो बहुत सस्ती हैं। लेकिन हम हैं कि हम कहते हैं जी कि हम बड़े तरक्की याफ्ता कौम हैं, लेकिन दर हकीकत हालात ये हैं कि तरक्की के नाम पर, तब्दीली के नाम पर, बेहतरीन मईशत के नाम पर, मजहबी ऐलानात के नाम पर हमेशा हमें बेवकूफ़ बनाया गया और बेवकूफ़ी की इंतहाओं तक हमें पहुंचाया गया। आज हालात इस तरह के हैं कि आज एक आदमी अगर 30,000 रुपए, कम अज कम अगर वो 30,000 रुपए कमाता है और उसके 2 बच्चे हैं, तो शायद उसके लिए भी सरवाइव करना मुश्किल हो गया है। एक दिहाड़ीदार मजदूर जो 1500 या 1200 रुपए लेता है, वो किस तरह आटा खरीदेगा, किस तरह डालडा खरीदेगा, किस तरह चीनी खरीदेगा, किस तरह दीगर चीजें खरीदेगा, और किस तरह वो अपने बच्चों की नन्ही नन्ही मासूम मासूम छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरी करेगा। और फिर अगर उसके वालिदैन बीमार हो जाते हैं फिर क्या होगा? ये वो सवालात हैं जो रात को हमें सोने नहीं देते, जगाए रखते हैं। पूरी कौम एक कर्ब का शिकार है, एक दर्द का शिकार है, एक इज़्तिराब का शिकार है। पूरी कौम मुज़्तरिब है, आज परेशान है, सोचों में डूबी हुई है कि किस तरफ, किस जानब हालात जा रहे हैं। अगर जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इकॉनमी खराब है, तो हमारे हुक्मरान, हमारा अशराफिया, हमारी एलीट क्लास जो है, वहां से कुर्बानी का स्टार्ट किया जाए। पंजाब में आप ब्यूरोक्रेट्स को नित अरबों खरबों रुपए की नई गाड़ियां दे रहे हैं, वहां पर इकॉनमी खराब नहीं है। वजीर आला मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जी कि वक्त की जरूरत है और इससे सिस्टम बेहतर होगा। खुदारा अरबों खरबों रुपए की गाड़ियां आप ब्यूरोक्रेट्स को देकर गरीबों से कुर्बानी मांगेंगे, तो फिर इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज्यादती शायद अहद हाजिर में, दौरे हाजिर में नहीं होगी, नहीं है और ना होगी। हम यही कहेंगे हुक्मरानों से कि खुदारा इस अवाम का सोचें, इस अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें, या फिर कुर्बानी का आगाज अपने आप से करें। पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आए, वक्त आया, जब भी मुश्किल पड़ी, जब भी कौम से कुर्बानी मांगी गई, तो कौम कभी पीछे नहीं हटी। लेकिन अब अगर आप कुर्बानी मांगते हैं, वाकई अगर हालात इस नेज पर पहुंच चुके हैं, वाकई अगर आज हालात गड़बड़ हैं, तो फिर आप कुर्बानी दें, आप टैक्सेस दें, आप अपनी मुराद छोड़ दें, आप अपना पेट्रोल छोड़ दें, आप अपनी गाड़ियां छोड़ दें, आप अपने बड़े बड़े बेंगलोर छोड़ दें, आप अपने बड़े बड़े मल्लाहात छोड़ दें, आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल छोड़ दें, आपके गिर्द गिर्द जो हजारों की सिक्योरिटी है आप उसको छोड़ दें, आप तनख्वाह लेना छोड़ दें, आप दिल्ली की पार्लियामेंट की जो मुराद हैं वो लेना छोड़ दें, तो ये बात तय है कि फिर तो कौम आपकी बात मानेगी। फिर कौम कहेगी कि कुर्बानी वाकई अगर ये मांग रहे हैं तो उन्होंने आगाज अपने आप से किया। पाकिस्तानी कौम ने तो हमेशा कुर्बानियां दी हैं, लेकिन सिर्फ गरीबों से कुर्बानी मांगना, ये तो हम समझते हैं कि ये ज्यादती है। इस वक्त को इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो बड़े संजीदा है। और आईएमएफ की जो डील हुई है, आईएमएफ की जो किस्त मिली है, उसके बाद वो इस कोशिश में है कि हालात बेहतर किए जाएं। मुल्क में जो ट्रिलियंस के, जो 6 ट्रिलियंस के जो मिनरल्स के कुछ रिजर्वायर्स जो हैं वो मिले हैं, इसी तरह बहुत से मामला बेहतर होने वाले हैं या होंगे। इकानमी के हवाले से भी उनका बड़ा कंसर्न है, लेकिन हम उनसे भी यही कहेंगे कि खुदारा ऐसे इकदाम न किए जाए जिससे गरीब का जीना 2 बार हो जाए, जिससे गरीब के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। आपने अगर इस सिस्टम को बेहतर करना है तो पहले उन लोगों को कानून के शिकंजे में लाएं, उन लोगों को कानून की गिरफ्त में लाएं, उन लोगों को कानून के दायरे में लाएं, उन लोगों को कानून के अंदर लेकर आए जिन्होंने इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। और चाहे वो जिसकी भी हुकूमत हुई हो, 1947 से 2023 तक बिल रहमाना किस्म का एहतसाब किया जाए और बिल्कुल गैर जानबदाराना एहतसाब किया जाए। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आप उनसे पैसे लें, ये बात तय है कि
जो लोग लूट मार करते रहे हैं, अगर वो कानून की गिरफ्त में आ जाएं और अगर वो अपना लूटा हुआ पैसा इस मुल्क को वापस कर दें, तो फिर शायद इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं, इकानमी बेहतर हो सकती है। लेकिन इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान की कौम मुस्तरब है, परेशानी के शिकार है, महंगाई की मारी हुई है, वक्त का तकाजा है, हालात का तकाजा है, इस कौम को रिलीफ दिया जाए। इस कौम से महंगाई का जो एटम बम है, वो इसके मसाइल जो हैं, जो मंडला रहे हैं, उनको खत्म किया जाए और इस कौम को एक ऐसी डगर पर आप पहुंचाएं जहां से एक शानदार इकानमी भी हो, जबरदस्त किस्म का मुल्क का मुस्तकबिल भी हो और कौम महंगाई से भी इसका छुटकारा मिलना चाहिए, मिल जाए। लेकिन सिर्फ पेट्रोल के जरिए टैक्स लगाकर, बिजली महंगी करके, अगर आप समझते हैं, अगर हमारे हुक्मरान समझते हैं कि इससे इकानमी बेहतर होगी, तो शायद ये उनका ख्वाब हो सकता है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इकानमी के लिए सबसे बेहतर टैक्स कलेक्शंस हैं, टैक्स रिफॉर्म्स हैं। इकानमी के हवाले से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब तक नहीं लाई जाएंगी, बड़े बड़े जो टैक्स चोर हैं उनको जब तक आप कानून की गिरफ्त में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये एक दीवाने का ख्वाब भी हम इसे कह सकते हैं। हम अपने शहर, छोटे से शहर एबटाबाद की मिसाल देते हैं कि टैक्स चोरी इतनी ज्यादा है कि लोग जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, वो प्रॉपर्टी वाले दिन फाइलर बन जाते हैं, बेचने वाले दिन या खरीदने वाले दिन, और अपना टैक्स 50% कम करवा के अगले दिन अपने आप को नॉन फाइलर डिक्लेयर करवा देते हैं। इसी तरह एक छोटे बंदे से लेकर एक बड़े लेवल तक टैक्स चोरी और टैक्स न देने का फुकदान है, यहाँ पर रवाज नहीं है। टैक्स की कलेक्शन के हवाले से अगर ये हुकूमत पेट्रोल महंगा करने के बजाय अगर बड़े बड़े जो चोर हैं उनसे अगर टैक्स लिया जाए, बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं, जरी टैक्स अगर यहाँ इस मुल्क में लग जाए, बड़े बड़े जिम्मेदारों पर, बड़े बड़े वडेरों पर, बड़े बड़े जागीरदारों पर अगर टैक्स लगा दिया जाए, तो फिर शायद हमें न से IMF के सामने हाथ फैलाने की जरूरत होगी और न गरीबों पर पेट्रोल पंप गिराने की जरूरत होगी। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीलॉग, आज की हमारी लाइव ट्रांसमिशन पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं, तबसरा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपकी अगर कोई सजेशन हो तो कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम उसको जरूर शामिल करेंगे। इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं कि आप जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें और दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क को मुसीबतों, परेशानियों से बचाए और गरीब आवाम के हालात बेहतर करे और हमारे हुक्मरानों को तौफीक दे कि वो ऐसे फैसले करे जिससे आवाम की मुश्किलात बेहतर हो सकें और आवाम की मुश्किलात कम हो सकें और आवाम को रिलीफ मिल सके। अब मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।